Simple harmonic motion. Today's topic is free, damped, forced and maintained oscillations. तो सबसे पहले I'm going to first of all explain free oscillation on board. Free oscillation, the oscillation of a particle with fundamental frequency, the oscillation, keep noting, the oscillation of a particle, the oscillation of a particle with fundamental frequency, with fundamental frequency under the influence of restoring force, under the influence of restoring force, under the influence of restoring force, are defined as free oscillation, are defined as free oscillations. अब स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखी हैं और मैं चाहूँगा कि आप भी लिखिए. मेरी टीचिंग तब तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक आप इसके साइमल्टेनियसली नोट्स नहीं बनाएंगे. नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द ऑसिलेशन ऑफ ए पार्टिकल विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स आर डिफाइंड एज फ्री ऑसिलेशंस. अब आप पूछेंगे सर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल, frequency of free oscillation is called natural frequency because it depends upon the nature and structure of the body. अगर हम natural frequency की बात करते हैं, कॉपी पेन से नोट कीजिए, मैं बोर्ड पे नहीं लिखने वाला, मैं डिक्टेट करवा रहा हूं. Frequency of free oscillation is called natural frequency. In natural frequency depends upon nature, it depends upon nature and structure, structure, structure of body. तो इसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. और फ्री ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड कॉमा फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन रिमेन्स कांस्टेंट. फ्री ऑसिलेशन में amplitude you all know, it is the maximum displacement of the particle from mean position. Amplitude comma frequency and energy of oscillation, and energy of oscillation, ये हमेशा फ्री ऑसिलेशन में कांस्टेंट रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट. होप इट इज क्लियर. इट्स वेरी सिंपल. फ्री ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी
of oscillation remains constant. The oscillation of a particle with fundamental frequency under the influence of restoring force are defined as free oscillation. And natural frequency क्या है? Natural frequency which depends upon the nature, structure of the body. That is called natural frequency. अब आप नोट कीजिए इसको अच्छे से, जल्दी नहीं करना. Look students, along this axis we have velocity, along this axis we have time. This is plus a maximum amplitude towards right, this is minus a amplitude towards left, and you know that this is a sine curve which is meant for free oscillation. The free oscillation is that oscillation of a particle जो एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करे अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स का इन्फ्लुएंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम क्या डिफाइन करेंगे? फ्री ऑसिलेशन. और नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है? It depends upon the nature and structure of a body. It depends upon the nature and structure of a body. Body का nature किस material का बना हुआ है, उसका structure कैसा है, उस पे भी depend करती है natural frequency. तो free oscillation, hope it is clear. Once again in English, free oscillation, the oscillation of a particle with fundamental frequency under the influence of a restoring force are defined as free oscillations. I should write here is the oscillations of a particle with fundamental frequency under the influence of restoring force are defined as free oscillation. And in free oscillation, amplitude, frequency and energy of oscillation always remain constant. Natural frequency of a body depends upon the nature and structure of the body, and this is a curve which is in fact a sine curve which tells about the free oscillation of a particle. So this is a velocity axis and this is a time axis. So note it down, make notes. Now after this we will move into damped oscillations. Damped oscillations. The oscillations of a body whose amplitude goes on decreasing, whose amplitude goes on decreasing with time. Okay, the oscillation of body whose amplitude goes on decreasing with time are called
damped oscillations are called damped oscillations. मैं पूरा बोर्ड पे लिख रहा हूं सो दैट आप भी साइमल्टेनियसली बोर्ड पे लिख सकें. यू नो, अगर आप स्विंग कर रहे हो, यू आर मूविंग टू एंड फ्रो, राइट, with the passage of time your amplitude is decreasing and then you come to at rest. I mean approaching to at rest, not at rest, but oscillation is decreasing. That is called damped oscillations. Okay, in these oscillations amplitude of oscillation decreases exponentially. Amplitude of oscillation decreases exponentially. ओके, ये एक्सपोनेंशियली यहां नहीं आ रहा, मैं इधर लिख देता हूं. एक्सपोनेंशियली अब आप पूछेंगे स्टूडेंट्स, ये एक्सपोनेंशियली का मीनिंग क्या है? एक ग्राफ होता है y इज इक्वल टू e टू पावर x. अगर आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये स्टीप फॉल दिखाता है. दैट इज एन एक्सपोनेंशियल फॉल. सो these oscillations, the amplitude of oscillation decreases exponentially due to damping forces like frictional force, viscous force, hysteresis. तो ये amplitude क्यों डिक्रीज करता है? ड्यू टू, बोलो, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स. विस्कोसिटी में आपने पढ़ा होगा लिक्विड्स में, फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन इज कॉल्ड विस्कोसिटी. विस्कस, VISCOUS, विस्कस फोर्स. और फिर उसके बाद और भी है हिस्टेरेसिस, वो आप मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे. तो ड्यू टू डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड the energy of the oscillating particle also goes on decreasing. Energy of oscillating particle goes on decreasing. तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस में जो रिस्पॉन्सिबल हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस होने के लिए. अब आप स्टूडेंट्स इसमें एक छोटा सा पॉइंट ध्यान से नोट करो. जब आप पेंडुलम को मूव करते हो, पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव करता है, राइट, तो पेंडुलम की मोशन धीरे 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 डिक्रीज करना शुरू हो जाती है. एक स्टेज ऐसे आती है कि उसकी मोशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, होती नहीं पर हल्की हल्की रहती है फिर भी. क्यों? बिकॉज फ्रिक्शन हो रही है एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. उसका बॉब है जो, उसको विस्कस फोर्स मिल रही है, फ्लूइड फ्रिक्शन मिल रही है. तो बहुत फैक्टर्स और भी होते हैं, लेकिन हम मेन की बात करते हुए टॉकिंग अबाउट द मेन. सो डैम्प्ड ऑसिलेशंस आर दोज ऑसिलेशंस in which amplitude of the body goes on decreasing with time.
तो इसको ग्राफिकली हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं बनाता हूं, इतना मेन वाइल आप इसको नोट कीजिए. So see students, I am showing here damped oscillations. The amplitude is decreasing, 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 decreasing and decreasing. This is damped oscillation. This is the time axis, this is the velocity axis, and this is O. So students, damped oscillation is that oscillation in which the amplitude of the oscillating particle is decreasing with time. Viscous force, one reason. Second is what? Second is frictional force. Third is hysteresis. Hysteresis कर्व्स होती हैं. हिस्टेरेसिस एक ना मैग्नेटिज्म में हम डिटेल +2 में पढ़ेंगे, अभी आप उसको मत मेंशन करो. लिखना लिख सकते हो HYSTERISIS, हिस्टीरिया दौरा जिसको बोलते हैं. एनीवे ये आप नोट कीजिएगा. इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं. नोट कीजिए जल्दी से. सो स्टूडेंट्स, the force producing a resistance to the oscillation is called damping force. The force producing resistance to the oscillation is called damping force. लिख ही देता हूं मैं, है ना, सब लिख रहे हैं तो ये भी लिखते हैं. The force producing a resistance to the oscillation is called damping force. If the velocity of the oscillation is v, then f is equal to minus bv. B is called damping constant. The force producing a resistance to the oscillation is called damping force. If the velocity of the oscillator is small v, then damping force is minus bv. B is called what? Damping constant. B is called what? Damping constant. Note it down please. Now students, the resultant force on the damped oscillator is given by what? The resultant force the damped oscillator is given by what? Is first of all Fr plus Fd. Fr is the restoring force which is dampening, and Fd. So Fr is what? Minus Kx, and Fd is minus Bv. Okay, so this is what the resultant force acting on it, and if we calculate the total one is, so this is minus m d2x upon dt square minus b ddt of x minus, okay, and plus kx. ये प्लस में चला जाएगा जब हम इसका टोटल वो करेंगे इंटीग्रल, तो दैट इज रिजल्टेंट फोर्स. ये सिंपली आपने रिजल्ट याद रखना है, इसका डेरिवेशंस में नहीं आपने मूव करना. आई एम जस्ट कोटिंग द रिजल्ट. derivation I am not doing for you people, right? Or neither it is required. Forced oscillations in which a body oscillates
under the influence of external force, means हम लोग जो बॉडी ऑसिलेट करवाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, उसको उसका जो आई शुड से एम्पलीट्यूड जैसे जैसे डिक्रीज करेगा, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको कॉन्स्टेंटली उसके एम्पलीट्यूड को what it will do, it will maintain by giving forced energy from the external agency. The energy is gained by the system, the particle, the body from external source and it remains constant. जैसे आप झूला झूल रहे हो और जैसे आप पुश देते हो तो स्विंगिंग हो रही है, राइट? लेकिन अगर आप पुश देना बंद कर देते हो तो जो स्विंगिंग है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा। आपने उसको डिक्रीज नहीं करने देना, फिर पीछे से पुश मारना है। यही चीज को फोर्स्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। और उसकी जो एनर्जी है वो गेन किसने करवाई? एक्सटर्नल एजेंसी, यानी कि आपने। फॉर एग्जाम्पल, योर फ्रेंड इज स्विंगिंग इन ए स्विंग एंड यू मेंटेन्ड its oscillation of a fixed amplitude and you are giving external push. That external push which you are giving to the body is called forced oscillation. Means you are the source which is creating the oscillations to be maintained and आपको external periodic force लगाना पड़ेगा under the influence of external force which is periodic. वो ऐसा नहीं है कि आप हर बार उसको आप फोर्स लगा रहे हो, नहीं। जैसे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने लगा फिर आपने फोर्स लगा दी, जैसे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने लगा फिर आपने फोर्स लगा दी। तो वो आपने एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आप उसको फोर्स लगा रहे हो। इज इट क्लियर? सो सिंपल सा एग्जाम्पल है। आप स्कूल में या गार्डन्स में झूला झूलते हैं बच्चे, तो एक फ्रेंड पीछे से पुश देता रहता है तो बच्चा स्विंग करता रहता है। जैसे जैसे उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज किया फिर पुश मारता है। मीन्स दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। द एम्पलीट्यूड of oscillator would have decreased due to damping force, but on account of the energy gained from the external force, so amplitude remains constant. Amplitude remains constant, 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 as external source is supplying energy periodically. अदरवाइज तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाएगा। हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं होने देना। सिंपल। सो स्टूडेंट्स, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल
सोर्स या फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, तो हम एक बेहतरीन कंडीशंस ऑब्टेन करते हैं, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। डोंट कंफ्यूज इट विद केमिस्ट्री रेजोनेंस, दैट इज अदर थिंग। दिस इज फिजिक्स रेजोनेंस। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, लिखते जाइए, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स is equal to the natural frequency of the oscillator. Frequency of external force is equal to frequency of natural oscillator. जो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द एक्सटर्नल नेचुरल ऑसिलेटर हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। देन दिस साइड इज नोन एज द स्टेट ऑफ रेजोनेंस एंड सच ए फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड व्हाट? Such a frequency is called resonant frequency. स्टूडेंट्स, ये बहुत ट्रेडिशनल एफर्ट है फिजिक्स पढ़ाने का, जिसमें कोई आलतू फालतू मैं बात नहीं करता, टू द पॉइंट आपको टीच करता हूँ सो दैट आप डेविएट ना हो टॉपिक से, राइट? और जहाँ पॉसिबल होता है मैं आपको एग्जाम्पल कोट करता हूँ सो दैट आपका टाइम भी बचे, समय भी बचे और आपका पैसा भी बचे। हर चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ इस यूट्यूब के थ्रू आपको देने की। तो रेजोनेंस क्लियर हुआ। जब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल ऑसिलेटर के इक्वल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, राइट? तो स्टूडेंट्स, swinging in a swing, if you apply a push periodically by pressing over the ground, वो तो चलो फिजिक्स में अब ग्राउंड को प्रेस करके ही धक्का मारते हो ना, नहीं तो आप पीछे जाओगे, राइट? रिएक्शंस को भी तो आप देखते नहीं, जब आप पुश करते हो किसी को ऐसे करके, ऐसे लाइक दिस सो दैट यू शुड ऑल्सो बी स्टेबल। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक इज वेरी सिंपल। स्विंगिंग से बहुत कुछ क्लियर होता है। जब हम किसी चीज़ को स्विंग करवाते हैं, लेट मी गेट यू अ स्विंगिंग बल्ब। लो स्टूडेंट्स, मेरे यहाँ वर्कशॉप में ये काविया पड़ा है सोल्डरिंग का, तो मैं इसको स्विंग करवा रहा हूँ। इट्स गोइंग टू एंड फ्रो लाइक दिस, इट्स गोइंग टू एंड फ्रो, ठीक है ना? तो जैसे इसकी ऑसिलेशन डैम्प हुई, ये देखो ये रुकने जा रहा है, डैम्प हुई, तो मैं डैम्प नहीं होने देना, मैंने एक इतना एम्पलीट्यूड रखना है। तो मैंने पुश किया, जैसे इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ फिर पुश किया, फिर पुश किया। ये मेरा हाथ क्या है? फोर्स्ड ऑसिलेशंस। क्या है? फोर्स्ड ऑसिलेशंस। और इसका एम्पलीट्यूड मेंटेन्ड है। तो मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी, अपने हाथ की फोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सोल्डरिंग रॉड, ठीक है, आयरन, इसके इक्वल कर दी, सोल्डरिंग आयरन के इक्वल कर दी, तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया। क्या हो गया? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड व्हाट? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फोटो FPS थोड़ा फर्क पड़ जाता है आपको, ये कॉन्टिन्यूसली अजीब सा ब्लरिंग सा लगेगा। तो अगर मैं स्लो मोशन में दिखाऊं तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मेरे हाथ के मारने की फ्रीक्वेंसी इक्वलेंट टू इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेटिंग बॉडी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल वे मैंने अडॉप्ट किया आपको थोड़ा सा बताने का। एंड अब हम और भी इसमें डिस्कस करते हैं।
पॉइंट्स मैं रब करता हूं बोर्ड ताकि आप लिख सको हर चीज क्लियरली. यस स्टूडेंट्स, in forced oscillation, frequency of damped oscillator is equal to the frequency of external force. Is equal to the frequency of external force. ओके तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो डैम्ड ऑसिलेटर है उसका फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगा? एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा. सपोज एक्सटर्नल फोर्स या ड्राइविंग फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, that is F naught cos omega t. F naught cos omega naught t कर लो चलो, right? All right. You all know F naught amplitude force, omega naught is frequency, t is the time at an instant. ये सब at an instant study कर रहे हैं. तो motion of a particle under combined action, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स? रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स. रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? माइनस के एक्स. डैम्पिंग फोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स? माइनस बी वी. डैम्पिंग फोर्स अभी हमने पीछे पढ़ा ही है, B इज कॉल्ड डैम्प कांस्टेंट, माइनस BV. तो ड्राइविंग फोर्स इज गिवन बाय व्हाट? ड्राइविंग फोर्स Ft इज गिवन बाय MA ड्राइविंग फोर्स Ft is given by MA minus kx minus BV plus F naught cos omega naught t. Okay. So if you just integrate it totally, make a differential equation of this, तो यहां से आपको ये मिलेगा m, ओके, m स्क्वायर d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस kx प्लस BV इक्वल टू F नॉट cos ओमेगा नॉट t. तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर नहीं, सॉरी, m d2x अपॉन dt स्क्वायर, राइट. तो ये हमें एक इक्वेशन बन के मिलेगी टोटल की टोटल सारे की सारी m d2x dt स्क्वायर, राइट. एंड दिस इक्वेशन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको
इसका एम्पलीट्यूड क्या निकल के आएगा वो याद रखना है आपने। मैं उसको रब करके लिखने जा रहा हूं, एम्पलीट्यूड, राइट। सो स्टूडेंट्स, द सॉल्यूशन ऑफ x is equal to x naught sin omega naught t plus phi of amplitude x naught f naught upon m omega naught square minus omega d square plus b omega by m whole square under root and tan theta omega naught square omega d square b omega d, and what is omega naught? Under root k by m, that is called natural frequency. So students, this is how we get it about the forced oscillation. Now I am going to discuss with you amplitude resonance, then after that energy resonance. Hope these formula you will be able to retain and learn. Note it down. So students, what is amplitude resonance? Amplitude resonance. When we talk about the amplitude resonance, it means the amplitude of force oscillator depends upon the frequency of omega d, that is of external source. Okay, means amplitude of the forced oscillator depends upon the frequency of the external source, that is omega d. So omega d must be equal to omega naught, that is the resonant frequency. The amplitude is maximum but not infinite because the presence of damping force, जो damping force है वो कभी भी एम्पलीट्यूड को इन्फिनाइट नहीं होने देगी। आप फोर्स्ड ऑसिलेट कर रहे हो, बॉडी अपना एम्पलीट्यूड सिर्फ मेंटेन कर रही है, ना कि आप उसका एम्पलीट्यूड को फर्दर और इंक्रीज कर रहे हो और इंक्रीज कर रहे हो। नो नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि उसमें लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है। उस लॉस ऑफ एनर्जी को आप एक्सटर्नल सोर्स से कॉम्पनसेट कर रहे हो। जैसे स्विंग हो रहा है, राइट, तो स्विंगिंग में जैसे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ तो एनर्जी डिक्रीज हुई, आपने कॉम्पनसेट करके फिर वही एम्पलीट्यूड कर दिया। ऑफ कोर्स ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा डी, बट ये इंफिनिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ डैम्पिंग फैक्टर। तो एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम बट नॉट इनफाइनाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम बट नॉट इनफाइनाइट। ये आपने याद रखना है। It's maximum but not infinite because presence of damping force. So the corresponding frequency omega naught is called what? Resonant frequency. कई बार वाइवा में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि when the damping frequency is equal to resonant frequency, what will be the amplitude? तो आप बोलोगे सर ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा डी तो इन्फिनिट। नहीं 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 नहीं, इन्फिनिटी इनफाइनाइट नहीं होगा, बिकॉज द लॉस ऑफ एनर्जी विल बी कॉम्पनसेटेड बाय द एक्सटर्नल सोर्स। सो दैट्स इट, राइट। तो इसको ग्राफिकली भी मैं थोड़ा दिखा देता हूं आपको। आई कैन शो यू ग्राफिकली टू। सी स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा डी। Amplitude is maximum but not infinite. So the blue line shows negligible resistance, damping, right? This is F naught upon K.
Okay, the amplitude of a forced oscillator depends upon frequency omega d. Omega d is equal to omega naught. The amplitude is maximum but not infinite because of presence of damping force. The corresponding frequency is called resonant frequency omega naught. Hope it is crystal clear. This is an axis where we show x naught, right, and this is the axis where we show a naught, and this is what the omega naught. Hope these curves are clear. This is omega naught. So high damping, low damping and negligible damping. तो omega naught जो है that is equal to omega d. अब यहां पर एक और रेजोनेंस आता है, एनर्जी रेजोनेंस, that I am going to explain with you. Energy resonance. What is energy resonance? The amplitude of forced oscillator omega equal to omega naught d absorbs maximum kinetic energy from the omega d, that is the driving force frequency system. Then state is called energy resonance, because the driving force keep on pushing the oscillator, and that energy is called what? Energy resonance, because it absorbs, right? So resonance, at resonance the velocity of the driver या driven oscillator is in phase with the terms, driving terms, right? So एक और बड़ा important point है, the sharpness of the resonance of driven oscillator depends on the damping. तो कितनी sharpness है वो depend करेगा dampening के ऊपर, right? So students, the driven oscillator, the power input of the driven term is called maximum at resonance. So driven power will be maximum, sharpness is maximum at the energy resonance. So these are some curves which we have studied, and almost this basics are almost over. With a simple harmonic motion, I'll check some other terms which are other than NCERT and the traditional books you have with you. Now अब आप करने क्या जाने वाले हैं, आप इस लेक्चर्स को अपने क्लास टीचर के, अपने एकेडमी के सिस्टम के लेक्चर के साथ कंबाइन करके ये लेक्चर आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड सिंपल हार्मोनिक मोशन मोर बेटर. सो मैंने कुछ हटके आपको देने की कोशिश की है. I try to give something different than what is generally in the study materials that you already have. If I quote the same thing, then it's of no use. I suppose it is clear. So students, you match with your study materials whatever you have with you and add on this, but must make notes. And all the best for this coming exam, because it's being recorded in January. So when you see next year, next session, तो उनके लिए रेगुलर क्लास हो जाएगा. बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर थ्योरी तो चलो हो जा रही है, व्हाट अबाउट दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. उसके लिए मेरी ऐप है टॉप रैंकर, TOPRANKR.com. तो आप अगर topränker.com को ले लेते हो, ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो यू कैन very easily
गेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर योर लाइफ टाइम एंड ये आपके लिए बेस्ट है एंड ये बहुत बढ़िया जाएगा। इसको आप फॉलो कीजिए। टॉप रैंकर को डाउनलोड करके 2-3 टेस्ट हैं, ट्रायल के लिए अटेम्प्ट कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो यू कैन टेक इट फॉर फुल 1 ईयर एंड होप दिस चैनल इज़ यूजफुल एंड वर्क हार्ड। थोड़ा सा टीडियस सा टॉपिक होता है ये, मतलब इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। लॉजिक्स को मतलब हम लॉजिक्स में ज़्यादा नहीं जाते इसमें, आपको मैंने सीधा कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस दिए हैं। तो होप इट इज़ ऑल क्लियर एंड अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वेव्स एंड मुझे लग रहा है एक लेक्चर मैं और डालूंगा इसमें, राइट। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर कीप ऑन टेलिंग टू दो स्टूडेंट्स जो ख़ास तौर पे गांव के लोग हैं, उनको ज़रूर भेजिएगा आप। ये मेरा कोशिश होता है कि उनके पास एक अच्छी नॉलेज इन्फॉर्मेशन जाइए। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ, अच्छी नॉलेज इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा तो क्या करें। अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है अपने टीचिंग स्किल्स को डायरेक्टली आप तक पहुँचाने के लिए। तो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल बिकॉज YouTube is a wonderful platform through which I am communicating you and hope all the best. Thank you students.